جس نے آج دوپہر ہمیں یہ پھر سے اکٹھا ہونے کا اور اپنے حضور جھکنے کا ایک گہرا فضل بخشا، اور شکر گزار ہوں ہماری بہن جنہوں نے ایک ہفتہ ڈیڑھ پہلے سے وعدہ کیا ہوا تھا کہ میرے گھر میں بھی خداوند کے کلام کی عزت اور تعظیم کے لیے عبادت کی جائے، تو آج ہماری بہن کی ساری نیک تمنائیں پوری ہو گئی ہیں۔ آمین۔ کیونکہ خداوند اپنے لوگوں کے آنسوؤں پر دل پر نظر کرتا ہے، اور کل سے ہی یہ بہن جب سے عبادت میں گئی تھی تو کل سے ہی آنسوؤں کے ساتھ رو رو کے دعا کر رہی تھی، اور میرا ایمان ہے کہ آج اس گھر میں ہم عبادت کر رہے ہیں، اور آج اس بہن نے اپنے دل کی تمنائیں خداوند کے حضور جو رکھی تھی پوری ہو چکی ہیں۔ آمین۔ ہاللیلویا۔ آمین۔ یہ ایسے نہیں ہے کہ ہم ایک چیز خدا سے مانگے اور اس کے پاس دینے کے لیے نہ ہو، ہمارے مانگنے کا طریقہ ہونا چاہیے، اور اس بہن کا طریقہ ابھی بھی وہ آنسوؤں کے ساتھ رو رو کے دعا کر رہی تھی، اور میرا ایمان تھا کہ یہ بہن ہی ہوگی۔ میں نے آنکھیں کھولی اور دیکھا اور وہ بہن ہی تھی۔ آمین۔ آمین۔ اسی لیے آپ جب مجمع ہوتا ہے تو آپ مت دیکھیں میرا بندہ، میرے بچے، میری بیوی، میرا ابو، میری ماں کون کون ہے، بھول جائے، کیونکہ آسمان پر آپ کو کوئی نہیں بچائے گا۔ آسمان پر آپ کو صرف خداوند کا یہ کلام اور اس کی عزت اور آپ کے وہ کام جو آپ نے خداوند کے لیے کیے، صرف یہی آپ کی مدد کریں گے وہاں پر۔ ہاللیلویا۔ ہاللیلویا۔ کتنے یہاں پر پڑھے لکھے ہیں؟ بائبلیں کتنوں کے پاس ہیں؟ ہاللیلویا۔ سب بڑی عاجزی کے ساتھ متی کا 10واں باب نکالیں گے، اور اس کی 5ویں آیت سے لے کر 7ویں آیت تک، اور پھر 23ویں آیت تک۔ ہاللیلویا۔ متی رسول کی معرفت لکھا گیا پاک کلام ساری دنیا کے نام، اور اس کا 10واں باب، اس کی 5ویں آیت سے 7ویں آیت تک۔ ان 12 کو یسوع نے بھیجا اور ان کو حکم دے کر کہا، غیر قوموں کی طرف نہ جانا اور سامریوں کے کسی شہر میں داخل نہ ہونا، بلکہ اسرائیل کے گھرانے کی کھوئی ہوئی بھیڑوں کے پاس جانا، اور چلتے چلتے یہ منادی کرنا کہ آسمان کی بادشاہی نزدیک آ گئی ہے۔ بیماروں کو اچھا کرنا، مردوں کو جلانا، کوڑیوں کو پاک کرنا، بدروہوں کو نکالنا، تم نے مفت پایا مفت دینا۔ آمین۔ آمین۔ 7ویں آیت کے بعد ایک آیت میں نے ایکسٹرا پڑھی ہے۔ آمین۔ اب 23ویں آیت۔ لیکن جب تم کو ایک شہر میں ستائیں تو دوسرے کو بھاگ جاؤ، کیونکہ میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ تم اسرائیل کے سب شہروں میں نہ پھر چکو گے کہ ابن آدم آ جائے گا۔ ہاللیلویا۔ ہاللیلویا۔ ایک اور حوالہ، لوکا کی انجیل اور اس کا 24واں باب اور اس کی 46ویں آیت سے لے کر 49ویں آیت تک۔ اور ان سے کہا، یوں لکھا ہے کہ مسیح دکھ اٹھائے گا اور تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھے گا، اور یروشلم سے شروع کر کے سب قوموں میں توبہ اور گناہوں کی معافی کی منادی اس کے نام سے کی جائے گی۔ تم ان باتوں کے گواہ ہو، اور دیکھو جس کا میرے باپ نے وعدہ کیا ہے میں اس کو تم پر نازل کروں گا، لیکن جب تک عالم بالا سے تم کو قوت کا لباس نہ ملے اس شہر میں ٹھہرے رہو۔ آمین۔ آمین۔ خداوند کے زندہ پاک کلام کا پڑھا اور سنا جانا ہم سبوں کے لیے باعث سے برکت ہو۔ سب اپنی اپنی جگہ پر تشریف رکھیں۔ اس کلام مقدس کا جو اقتباس پڑھا گیا ہے، یہ 2 حوالہ جات، اس کو ایک نام دیتے ہیں اسرائیلی بھیڑیں اور دلہن۔ اسرائیلی بھیڑیں اور دلہن۔ ہاللیلویا۔ بڑی عاجزی اور انکساری کے ساتھ اب مسیح یسوع نے اپنے شاگردوں کو کہاں بھیجا ہے؟ آمین۔ اسرائیل کے کتنے قبیلے ہیں؟ 12 قبیلے، 12 ملک ہیں اور 12 شاگرد ہیں،
اور 12 शागिर्दों को हुक्म किया कि आपने सामरिया में भी नहीं जाना, गैर कौमों की तरफ भी नहीं जाना। सामरी भी गलत मलत कौम है, आधे इसराइली हैं और आधे हैं असूरी और आधे हैं बाबली। तो वो गलत कौम है, खुदावन ने मना किया कि वहां नहीं जाना और ना तुमने गैर कौम की तरफ जाना है। ठीक हो गया। अब इस कलाम मुकद्दस को पढ़ते पढ़ते गैर मसीही आलम दीन सवाल उठाते हैं, भाई मसीहो, आप गैर कौमों में मुनादी करने क्यों जाते हो? क्योंकि आपके मसीहा ने मत्ती 10वें बाब और उसकी 5वीं आयत में 6ठी आयत में ये वादा किया है कि तुम इसराइल के अंदर अंदर रहना, और तुम कहते हो कि हम गैर कौमों में मुनादी करने जाएंगे। अब ये क्या बात है? उनकी समझ में क्यों नहीं ये बात आ रही कि यहां पर लिखा है कि उन 12 को यीशु ने भेजा, उनको हुक्म दिया कि गैर कौमों की तरफ ना जाना, सामने किसी शहर में ना जाना। लेकिन अनाजील के आखिर को नहीं उन्होंने पढ़ा। अनाजील के आखिर में एक और बात लिखी थी जो मैंने अभी ये दूसरा हवाला पढ़ा है लूका का। अब लूका कुछ और बयान कर रहा है। लूका ये खुदावंद का कलाम फरमाता है कि मसीह यीशु ने फरमाया कि तुम यरूशलेम से शुरू करके सब कौमों में, अब यहां तो इसराइल का नाम नहीं आया, लिखा है कि यरूशलेम से, जो इसराइल के अंदर एक मुकद्दस शहर है, वहां से शुरू करना, तो सारी दुनिया में मुनादी करना, मेरे नाम का बपतिस्मा देना, मेरे नाम से लोग निजात पाएंगे, मेरे नाम से गैर कौमों में मेरे नाम की उम्मत निकलेगी। हालेलुया। अब कौन सी बात ठीक है, मत्ती 10वां बाब या लूका 24वां बाब? हालेलुया। क्या बात है? इसलिए तो लोग इसलिए गैर कौम में उंगली उठाती हैं कि आपके मसीहा ने तो हुक्म नहीं किया, तो आप गैर कौमों में मुनादी क्यों करने जाते हो? दरअसल वो पूरे कलाम को नहीं पढ़ते। जब हम पूरे कलाम को पढ़ेंगे तो पूरी बरकत पाएंगे। आमीन। अभी यीशु मसीह जिस्म में है। किस में है? जिस्म के अंदर है। और मसीह यीशु किन में से जाहिर हुए? इसराइलियों में से। वो जिस्म के मुताबिक इसराइलियों के भाई हैं। आमीन आमीन। वो इसराइलियों का भाई है और वो उनको मना करता है कि मैं गैर कौमों के पास नहीं भेजा गया। इसी तरह एक औरत आई, उसकी बेटी बीमार थी, बदरू थी, और मसीह यीशु ने एक बहुत बड़ी इबादत खत्म की, उसके बाद खाना खा रहे थे और यीशु मसीह के पास वो आना चाहती थी, शागिर्द आने नहीं दे रहे थे। वो दुआ करवाना चाहती, उनकी दुआ का टाइम खत्म करो, खाने का टाइम है, अब ऐसा करो तुम चली जाओ। तो उसने जबरदस्ती आगे होकर तो चलेगी, कहती है खुदावंद मेरी बेटी बीमार है तो उसके लिए दुआ कर। मसीह ने उसके सामने एक ईमान की तमसील रखी कि कुत्तों की क्या से कहते हैं, लड़कों की रोटी लेकर कुत्तों को डाल देना रवा नहीं। अब इसराइली गैर कौमों को कुत्ता कहते थे। कुत्ता क्यों कहते थे? कुत्ता अपनी कह करके खा जाता है और अपनी पोटी करके खा जाता है। ये आपने देखा है? नहीं देखा? ठीक है, देखा है तो फिर भी ठीक है। इसलिए गैर कौमों को इसराइली कुत्ता कहते थे। वो नापाक काम करते थे, घिनौने काम करते थे कि हम नाम भी लें तो हमारे रोंगटे खड़े, ज़हन खराब हो जाए। आमीन। इसलिए खुदावन ने उसका ईमान चेक किया और खुदावन ने इस औरत को क्या कहा? क्या कहा? कुत्ता। वो तो औरत है, वो कुतिया है। मेरी बात की समझ आ रही है ना? सही सही। अब खुदावन उसका ईमान चेक कर रहे हैं कि ये मैं इसको ये कहूंगा तो क्या कहेगी। तो कहती हाँ खुदावन मैं मानती हूं हम कुत्ते हैं और हम मालक के टुकड़ों पर पलते हैं, जो आप खाना खा के बचा देंगे और आपकी मेज से जो नीचे करेंगे हम कुत्ते वो खाएंगे। आमीन। उसने अपनी आजिज़ी का इजहार किया। हाँ हम इस लायक हैं जो तू हमें कह रहा है, क्योंकि तू खुदावंद है। पहले हमें खुदावंद की पहचान होनी चाहिए कि वो है कौन जिसके आगे हम रोते हैं, वो है कौन जिससे कुछ मांग रहे हैं और कुछ मिलता नहीं, और जिनको मिलता है वो तो फिर बहुत ही धूमधाम से उसकी शुक्रगुजारी करते हैं। हालेलुया। इसीलिए मेरे अजीजों आज हम उसके जिस्म के अंदर की खिदमत और मरने के बाद जी उठने के बाद की खिदमत पर गौर करेंगे। हालेलुया हालेलुया। अब हम इस बात पर गौर करेंगे कि यीशु मसीह ने अपने शागिर्दों को हुक्म किया कि आपने मुनादी क्या करनी इसराइल के अंदर? आसमान की बादशाही
नजदीक आ गई है, नजदीक आ गई है, बिल्कुल नजदीक आ गई है। और अब गैर कौमों में भी क्या मुनादी हो रही है? तौबा करो क्योंकि यीशु मसीह की दूसरी आमद नजदीक आ गई है। बादशाह नहीं कहेंगे क्योंकि आपको पता, रात को पता चल गया बादशाही हमारे दरमियान है, अब उसकी आमद है। अब हम बादशाह की मुनादी नहीं कर रहे, अब हम उसकी आमद की मुनादी कर रहे कि खुदावंद यीशु मसीह आने वाले हैं, वापस आने वाले हैं अपने लोगों को ले जाने के लिए। आमीन। इस बात को समझने के लिए हम यूना की जिंदगी पर गौर करेंगे। किसकी जिंदगी पर? यूना के बारे में मैं पहले भी थोड़ा बहुत बता चुका हूं, लेकिन मैं चाहता हूं कि आज इस बात पे और गहरा गौर खोज करें। आमीन। मत्ती की इंजील और उसका 15वां बाब, उसके अंदर 24वें आदमी यीशु मसीह ने फरमाया है, उसने जवाब में कहा कि मैं इस्राएल के घराने की खोई हुई भेड़ों के सिवा किसी के पास नहीं भेजा गया। अब ये कौन कह रहा है? खुदावंद यीशु मसीह फरमा रहे हैं। यहाँ पर भी बहस मुबासा हो रहा था, वो मुनादी कर रहे थे, और वहां पर भी गैर कौमों की बात आई तो मसीह यीशु ने फरमाया कि मैं गैर कौमों के लिए नहीं भेजा गया, मैं इस्राएल के लिए भेजा गया। आमीन। अब देखो वो उनमें से जाहिर हुआ और वो फरमाता है कि निजात सिर्फ यहूदियों में से है। क्यों ये बात यीशु ने कही यहूदियों में से है? क्योंकि यीशु मसीह यहूदा के कबीला में से पैदा होने वाला यहूदा का बब्बर शेर है। हालेलुया। इसलिए मेरे अजीजों, खुदावन ने फरमाया कि मैं इस्राएल की जो भेड़ें खो गई थी। अब इस्राएल किसका बेटा है? ध्यान करो बेटा, इधर ध्यान करो। इस्राएल किसका बेटा है? इस्राएल बेटा है यकूब का, और यकूब किसका बेटा है? इसहाक का। गलती तो नहीं होगी कोई? इस्राएल यकूब है और यकूब इसहाक का बेटा है और इसहाक इब्राहिम का बेटा है। बात नहीं ना गांधी रहती। और इब्राहिम किसका बेटा है? तारा का। और वो पीछे करते 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 सिम के बेटे हैं, और सिम किसका बेटा है? नूह का। और नूह किसका बेटा? लमक का। और लमक आगे करते 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 सेत का बेटा है, और सेत किसका बेटा है? आदम का बेटा है। और आदम किसका बेटा है? खुदा का बेटा है। अब बात समझ आई यीशु मसीह ने यहाँ पर क्या बात कही है? यीशु मसीह ने फरमाया मैं इस्राएल के घराने की खोई हुई भेड़ों को तलाश करने आया हूँ। कि जब आसमान से एक भेड़ को मैंने बागेदन के अंदर रखा और वो भेड़ खो गई, मैं उसको ढूंढता ढूंढता नीचे आया, और इतनी देर में उसके इतने बच्चे हो गए थे जमीन पर, वो भी अपने बाप के पीछे बरगश्ता हो गए, मेरी राह से फिर गए। तो मैं इस्राएल के घराने की, इस्राएल का घराना पीछे तक जाता है आदम तक। तो खुदावन ने क्या बात कही कि मैं इस घराने की भेड़ों को ढूंढने के लिए आया हूँ, मैं सबसे अच्छा चरवाहा हूँ। हालेलुया, हालेलुया। अब इस बात को समझने के लिए कि फिर गैर कौमें कहाँ जाएंगी, सामरिया कहाँ जाएगा, गुनाहगार लोग कहाँ जाएंगे? यीशु ने तो फरमा दिया है कि मैं गैर कौमों के लिए नहीं आया। अब वो जिस्म के अंदर रहकर अपने जिस्मानी भाइयों की बात कर रहा है। आमीन। अब देखिए, इस्राएलियों को एक निशान दिया गया है कि वो खतना करवाते हैं। क्या करवाते हैं? खतना करवाते हैं। उनके जिस्म पर खतने का निशान है, और जो खतना करवाएगा तो खुदा उसके साथ रहेगा। आमीन। अब देखो, खतना तो मर्द का होता है, और औरत मर्द के अंदर से निकली है, औरत मर्द के अंदर से निकली है। इसलिए जिस मर्द का खतना होता है, उस मर्द की जो पसली उसकी औरत है, वो उस बरकत में शामिल हो जाएगी। ये खुदा उस मर्द के साथ रहेगा जिसका खतना हुआ है, तो वो उसकी बीवी के साथ भी रहेगा, उसकी औलाद के साथ भी रहेगा जिसका ये खतना होगा। हालेलुया। लेकिन अब गैर कौमों में ये बरकत किस तरह जाएगी? अभी गैर कौमों की तो बात ही नहीं हो रही। मसीह यीशु ने कह दिया कि मैं इस्राएल के घराने की कोई भेड़ों के सिवा कहीं नहीं भेजा गया। और इसको समझने के लिए हम यूना की जिंदगी पर गौर करेंगे।
खुदा ने यूना नबी को चुना कि जा नैनवा पर जा और नैनवा पर मेरी तरफ से नबूवत कर कि मैं सारी दुनिया का खालिक और मालिक उसको खत्म करने वाला हूं, आसमान से आग नाज़िल करूंगा 40 दिन के बाद। और वो 41वें दिन वहां पर बैठ गया। अब देखें, मसीह यीशु का रूह इसके अंदर था और जो कुछ इसके साथ हुआ वो मसीह यीशु की जिंदगी में हुआ। आमीन। जब ये पानी पर है तो ये सोया हुआ था कश्ती के अंदर। जब मसीह यीशु कश्ती में अपने शिगिर्दों के पास साथ जा रहे थे तो मसीह यीशु कश्ती में सोया हुआ था। अब आपको कितना आसान हो गया ना समझना, ठीक हो गया। इसे कहते हैं मुकाशफा। पुराने अहदनामे के अंदर यीशु मसीह आपको नजर आना चाहिए। हालेलुया। अब वहां पर वो भी सो रहा था और यहाँ पर यीशु मसीह भी सो रहे हैं और वहां पर उसको भी जगाया यूना, अरे भाई कौन है तू, उठो, तुम्हें नहीं पता तूफान आया हुआ है। तू भी अपने खुदा को याद कर, गौर करना इन बातों का। तू भी अपने खुदा को याद कर, शायद तेरे खुदा की मदद से हम पर ये अजाब टल जाए। आमीन। और शिगिर्द देखो, शिगिर्द और मसीह यीशु का कोई ताल्लुक है? शागिर्दी का ताल्लुक है ना, वो एक दूसरे के घरेलू रिलेशन तो नहीं ना है। उस्ताद कहाँ का, शिगिर्द कहाँ के, ठीक हो गया। और वहां पर वो भी यूना कहाँ का और वो परदेसी वो कहाँ के। आमीन आमीन। अब जब मसीह यीशु सोया, शिगिर्दों ने जगाया, उस्ताद जी उठे, उस्ताद जी उठे, देखे ये तूफान नहीं थम रहा, इस तूफान को थमाएं। तो वहां पर यूना ने क्या कहा था? जब तूफान हो रहा था तो उसको जगाया था, उसने कहा था ये मेरी वजह से तूफान उठा है तो तुम मुझे पानी में फेंक दो। लेकिन अब यहाँ पर यीशु ने क्या कहा? ऐ कम मत कर दो, तुम इसे डांटो, ये खत्म हो जाएगा, ईमान रखो। वजह तो यीशु ही है, ठीक है। वहां पर यूना कहता मुझे पानी में फेंक दो, लेकिन अब यहाँ पर पानी को थमाने वाला खुदावंद खड़ा है। यीशु मसीह खड़े हो गए और तूफान को डांटा और वहां पर हजारों की तादाद में, कितनी तादाद में? हजारों की तादाद में क्या थी? बदरूहें, जिन्नात थे, पानी वाली सारी मखलूकात थी, शैतानी, वो जो पानी को इस तरह मरोड़ रही थी, पानी के अंदर वो डुबोना चाहती थी, यीशु को मारना चाहती थी, उसके शिगिर्दों को मारना चाहती थी कि ये जो आगे खुदा का काम करने जा रहे हैं ये यहीं पर इनका काम तमाम हो जाए। लेकिन वो सोया था। जब यीशु मसीह उठे और यीशु मसीह ने दुआ की और उन चीजों को डांटा, हवा को डांटा, तूफान को डांटा और पानी बिल्कुल साकन हो गया। हालेलुया। और पीछे क्या था? और पीछे भी जब यूना को पानी में फेंका, उसने क्या कहा? ये मेरी वजह से है। यहां पर भी ये तूफान यीशु मसीह की वजह से आया था। वो लश्कर, अब्लीस के जो लश्कर थे वो यीशु मसीह को मारना चाहते थे और वहां पर भी यूना मरा पानी में मरा। उनके लिए मर गया ना बेटा, उन्होंने तो उसको पानी में फेंक दिया है। कहते हमें माफ करना, हम तेरे खून से बरी हो गए हैं क्योंकि तूने खुद ही कहा कि मुझे पानी में फेंक दो। और ये यीशु मसीह के लिए एक नबूवत ठहरी, एक निशान बन गया। हालेलुया हालेलुया। अब देखें, यूना और एक साइड पे यीशु मसीह, क्या बराबर की जिंदगी चल रही है? जब यूना आगे जाता है तो आगे जाके वो 40 दिन का रोजा उनका रखवाता है। उन्होंने माफी मांग ली, रोजा रखा और यूना भी वहां पर 40 दिन भूखा रहा, 40 रात भूखा रहा। आमीन। तो यीशु मसीह ने भी 40 दिन लगा रोजा रखा। हालेलुया हालेलुया। क्या देखा? पुराने दिनों में यीशु नजर आ रहा नबियों के अंदर। आमीन। खुदावंद आपको बरकत। इसलिए तो हम कहते हैं हर एक जुबान ये करार करे कि यीशु मसीह खुदावंद है। जो पुराने यादनामे का यहोवा खुदावंद है वो यीशु मसीह है। वो ये बात है कि नबियों के अंदर वो नजर आना चाहिए। हालेलुया। अब जो नैनवा का शहर है वो गैर कौमों के लिए निशान है कि इसराइल के अंदर से पहली बार खुदा ने अपने नबी को गैर कौमों को बचाने के लिए भेजा। खुदा किसी की तरफदारी नहीं करता, खुदा किसी की हलाकत नहीं चाहता। तो खुदा ने क्या किया? अपने नबी यूना को भेजा। अब मसीह यीशु ने फरमाया कि मैं गैर कौमों के पास नहीं भेजा गया। तो यीशु मसीह नहीं ना जाना चाह रहे। क्यों नहीं जाना चाह रहे?
क्योंकि यूना भी जाना नहीं चाह रहा था। हालेलुया। यूना भी जाना नहीं चाह रहा था। आपको याद होगा इस कहानी में, मैंने रात को भी बताया था, पिछले दिनों भी इसका थोड़ा सा मैंने हवाला दिया था। वो नैनवा की बजाय तुरसस को चला गया। हालेलुया। वो क्या कहता है, मैंने नहीं उधर जाना, मुझे गैर कौमों में क्यों भेजा, मुझे इसराइल के इतने मुल्क है, मुझे खुदा उसमें मुनादी करने के लिए भेज देता। कहता अच्छा ठीक है चला जाऊंगा, अभी 40 दिन पड़े हो गए। आमीन। अब 40 दिन आजमाइश का था। हालेलुया। इसलिए अजीजो, मसीह यीशु की ये उल्वियत है कि वो पुराने यादनामे के नबियों के अंदर नजर आ रहा है, क्योंकि वो रूह है और उसको जिस्म की जरूरत होती है। आमीन। अब जब वहां पर देखते हैं कि 40 दिन 40 रात जब वहां पर मुनादी हुई तो लोगों ने माफी मांगी और खुदा ने उनको माफ कर दिया। देखो, हर तरह की बदी, हर तरह की बदफेली, हर तरह के बुरे काम उस शहर में होते थे, और वो वहां बहुत अमीर मुल्क था, अमीर शहर था वो नैनवा। तो वहां पर जब ये बदियां बढ़ गई तो खुदावन ने अपने नबी को भेजा कि इन तक मेरी अदालत का संदेशा ले जा और उनको जाकर आगाह कर दे कि मैं तुमसे नफरत करना शुरू हो गया हूं, तुम्हारी बदी मेरी तरफ पहुंच चुकी है और अब मैं तुम्हें माफ नहीं करूंगा। अगर तुम माफी मांगोगे तो इसका मतलब कर दूंगा। क्योंकि देखो ना, खुदा तो अपना कलाम फरमाता है तो वो बेच से वापस नहीं लौटता। तो यहाँ पर तो वापस हो गया ना कलाम उसका, हुआ कि नहीं वापस। यहाँ पर खुदावन ने फरमाया 41वें दिन मैं आग नादल करूंगा, आग नादल नहीं हुई। क्यों? क्योंकि उसके बनाए हुए लोग माफी मांग रहे थे। आज भी आप उससे माफी मांगे, अपने किए पर पछताएं। जो आपको गुनाह याद भी नहीं है, सिर्फ खुदा जानता है, या जहां पर आपने किए हैं वो जानते हैं, जो आपके चश्मदीद गवाह है वो जानते हैं। आप माफी मांगे खुदा से। हालेलुया। वो आपको माफ करेगा। देखो, खुदा ने यूना को बचाने के लिए मछली तैयार की। यूना पहला बाब 17वीं आयत। खुदा ने यूना के लिए एक मछली तैयार की जिसमें वो 3 रात दिन उसके पेट में रहा। ये मसीह यीशु के लिए निशान था। अब जमीन के अंदर, ये जमीन उसके अंदर पानी, तो ये क्या कब्र को जाहिर कर रही है? आमीन। तो यूना कब्र के अंदर रहा, पानी में रहा, क्योंकि उसकी तो वो मौत ही थी ना, कोई नजर नहीं आ रहा, कोई जिंदगी नहीं, कोई खाना नहीं, कोई पीना नहीं, कोई सूरज की धूप नहीं, तो वो तो जमीन की तह में चला गया है। इसी तरह आपके और मेरे मसीह यीशु के लिए कब्र नहीं बनाई गई थी, क्योंकि इसराइल का रिवाज था कि वो अपनी अपनी कब्र खुद बनवाते थे पहले ही मरने से, और कहते जब मैं मरूंगा तो मुझे इस कब्र में रखना। आज भी यूरोप में, मगरिब में, उस साइड के जो ममालिक है उनके अंदर यही रिवाज है। हालेलुया। अब देखें, खुदा ने अपने बेटे के लिए भी कब्र की तैयारी करके रखी। किसकी कब्र में रखा गया था? अरमतिया का यूसुफ था। वो कौन था? अरमतिया शहर का यूसुफ नाम था, जो यहूदियों की एक आला जमात सनेड्रन, उसके अंदर एक अच्छा रुतबा था उसका, और उसी के अंदर निकोदेमस था, और उसकी कब्र थी। और जब मरा तो वो दोनों, निकोदेमस और अरमतिया का यूसुफ, ये खुदावंद को अपना उस्ताद कबूल कर चुके थे। इसीलिए जब सब शागिर्द भाग गए तो खुदावंद को कफनाने दफनाने का इन दोनों को इंतजाम मिला। हालेलुया। अब ये जो दोनों बंदे हैं, ये कश्ती के अंदर जो उसको पकड़ के इस तरह फेंक रहे हैं, क्या उसको नहीं पेश कर रहे? हालेलुया। हालेलुया। उसने कहा भाइयों मुझे उठा कर ना पानी में फेंक दो, तूफान थम जाएगा। तो 2 बंदों ने उठाया ना, एक ने हाथों से, एक ने पैरों से उसको पकड़ा। उसने कहा भाई हमें माफ करना, तूने खुद ही कहा है तेरा गुनाह हमारे साथ नहीं तेरे सारी हो जा तेरी। जैसे उसको पानी में फेंका, सब तूफान थम गए और पानी जो था इस तरह सड़क की तरह बिल्कुल स्मूथ हो गया। हालेलुया। हालेलुया। अरमतिया का यूसुफ और निकोदेमस पुराने यादनामे में नजर आए। हालेलुया। क्या है? ये मुकाशफे हैं, ये खुदावंद की ब्लेसिंग है। जब आप रो रो के दुआएं करते हैं तो फिर उसका ताजा मन आपके पास आता है। हालेलुया। फिर वो अपने लोगों को सेहत सुधा करता है। अब देखें, वो हमारे खुदावंद यीशु मसीह तीसरे दिन कब्र में से जी उठे। अब कब्र में जी उठने के बाद वो और बात करते हैं। वो अपने शागिर्दों पर जाहिर हुए, अमावस की राह पर अपने 2 शागिर्दों पर जाहिर हुए, 120 की जमात पर जाहिर हुए, और यकूब पर जाहिर हुए,
अपने शिगिर्दों पर, 10 शिगिर्दों पर, फिर 11 शिगिर्दों पर जाहिर हुए, और बहुत से लोगों पर 40 दिन तक वो जाहिर होते रहे, अपनी चश्मदीद गवाह करने के लिए कि मैं मर गया था, मैं झूठा हूं। अब उसकी बातें और हैं। जब वो मर कर झूठा, अब उसकी बातें बदल गई हैं। जब यूना 3 दिन मछली के पेट में रहा तो उसकी सारी यहूदियत जो थी, पाकीज़गी थी, पाकीज़गी का जो लेवल था वो मर गया। वो क्या हो गया? मर गया। मछली के पेट में है। मछली ऐसा जानवर, उसको हम पकड़ेंगे तो उसके ऊपर से ना कि वो स्लिप होने वाला उसके मादा सा लगा होता है, क्योंकि वो पानी के अंदर रहने वाला ये जानवर है। ठीक हो गया। अब पानी की मखलूकात है, हम उसको पकड़ते हैं तो वो हाथ से निकल जाती है। ठीक है। और जब ये पानी के अंदर मर गया और तीसरे दिन खुदावन ने मछली को नैनवा के साहिल पर उगल दे, जब ये वहां पर निकला मछली के पेट से, तो जब ये निकला तो इसको अपने पास है बदबू आ रही है। ओ यार, ये मैं कहाँ फंस गया हुआ था। और सर देखा, उसने कहा ओ यार, मेरे सर में ये क्या लगा हुआ है, मेरे कपड़ों पर। वो मर के जी उठा है। अब जो उसकी थी ना यहूदियत, मैं गैर कौम को पसंद नहीं करता, मैं गैर कौम की तरफ जाना नहीं है, वो बड़े गंदे लोग हैं, वो बड़े गंदे काम करते हैं, बुतों को मानते हैं, हम खुदा को मानते हैं। अब खुदा ने उसे भेजा था, तो खुदा उससे पहले नई जिंदगी दी। अब वो यहूदियों वाली जिंदगी में नहीं है, इसराइली नहीं रहा, अब मर के जी उठा है दूसरी दुनिया में। जब को मर के जी उठता है तो दुनिया में नहीं रहता, वो अगली दुनिया, रूहों की दुनिया में चला जाता। तो ये मर के जी उठा, इसका जिस्म था उन लोगों के लिए कि वो मुझे देख सके। अब ये यहूदी नहीं रहा। आमीन। ताकि अब ये गैर कौमों में जब जाए तो गैर कौमों की तरह ही बन जाए, उनको बचाने के लिए। मेरी बात की समझ आई? बिल्कुल ठीक ठीक। हालेलुया। इसी तरह हमारे खुदावंद मसीह यीशु जब मर गए, तीसरे दिन जी उठे। यूहन्ना 20वां बाब 3 से 10वीं आयत के मुताबिक हम गौर करेंगे। पतरस और यूहन्ना कब्र की तरफ दौड़े, और यूहन्ना ने पहले कब्र पर जाकर कब्र में झुक कर देखा, जहां सिर्फ कपड़े ही पड़े थे, और अंदर ना गया। मगर पतरस ने अंदर जाकर जायजा लिया तो देखा कि रुमाल और कपड़े अलग अलग पड़े थे। दोनों ये देखकर वापिस चले गए। आमीन। अब कब्र खुली है। कब्र पर दोनों शिगिर्द गए हैं, और सबसे पहले कब्र पर एक औरत गई थी, जिसने आकर इनको बताया, और उसके बाद ये गए। हालेलुया। जब इन्होंने देखा और ये वापस आए तो ये बड़े परेशान थे। और सबसे पहले हम इस औरत की बात करेंगे। और जब ये औरत मरियम मगदलीनी ये वहां पर जाकर रो रही थी, खाली कब्र देखकर रो रही थी, और इतना रो रही थी कि हमारे खुदावंद मसीह यीशु इस बेटी के आंसुओं को देखकर मजबूर हो गए कि मैं, अच्छा पहले तो उसके पास नहीं आना था, चलो मैं इसके पास पहले ही आ जाता। मेरी बात की समझ आ रही है? हालेलुया। आज भी इस मजमे में ये बहन रो रही थी, और मेरा ईमान है कि जिस तरह उस मरियम के पास यीशु शिगिर्दों से पहले ही आ गया ना, तो इस बेटी के दिल में भी पहले ही आ गया। हालेलुया। जो ये बेटी मांग रही थी, इसको भी खुदावंद यीशु ने दे दिया। आमीन। इसी तरह जब वो बहुत रो रही थी तो 2 फरिश्ते उसके पास आए, और फरिश्ते ने कहा कि तू क्यों रो रही है? और उसने फरिश्तों को बताया और पूछा कि यहाँ पर मेरा खुदावंद था, और वो कोई लगता उठाकर कोई ले गया है। और जब फरिश्ते चले गए, उसने कहा तो जिंदा को मुर्दों में क्यों ढूंढती है? और वो उसके बाद फिर वहां पर खड़ी रोती रही। वो चाहती थी कि अगर कोई उठाकर ले गया है तो मुझे पता चले, तो मैं उसको उससे ले लूं और अपने खुदावंद को कफनाऊं दफनाऊं उस पर मैं, और ये खुशबुएं लगाऊं। हालेलुया। तो जब वो फरिश्ते उसको बताकर चले गए, तो जब मसीह यीशु वहां पर जाहिर हुए, अब गौर से देखना, कपड़े तो यीशु मसीह के शिगिर्दों ने देख लिए थे, अंदर पड़े, और मसीह यीशु इस औरत पर जाहिर हुए। लेकिन मसीह ने उससे कहा, ऐ मरियम। मरियम ने देखा और कहा, उस्ताद जी। मरियम यीशु को छूने लगी, और यीशु ने कहा, मुझे ना छू, क्योंकि मैं अब तक बाप के पास नहीं गया। हालेलुया। कि अभी मुझे मत छूना। वो उसको पहचान गई और उसको छूने लगी। उसने कहा, अभी ना छूना। आमीन। अब यीशु से जी उठे हैं, यीशु के कपड़े तो अंदर पड़े हैं, तो ये किसको छूने लगी थी? यीशु के कपड़ों को।
ये जलाली बदन के जलाली कपड़े हैं। हालेलुया। ये जलाली कपड़े हैं। ये मुकाशे की किताब में भी आपको नजर आएंगे। आसमान पर नबी ब्रदर ब्रानम जब आसमान पर गए तो वहां पर जो बूढ़ी बूढ़ी माइयां थी, 90 साल की औरतें थी, तो जब आसमान पर रोया में वो तीसरे आसमान सातवें छठे आसमान पर गए फिरदौस के अंदर, तो वहां पर उसकी बीवी जो मर गई थी वो उसके पास आई और उसके लंबे लंबे बाल थे, वाइट पोशाक पहनी थी और खूबसूरत थी। 25 साल की जवान खूबसूरत औरतें थी। तो वो अपने मियाँ को आ गई, ऐसे गले लगा के मिलती है और मियाँ भी रूह में गया है ऊपर, जिस्म नीचे है, रूह उसकी ऊपर है। तो वो अपने मियाँ को क्या कहती है? नबी ब्रदर ब्रानम कहता है कि मेरी बीवी ने जब मुझे गले लगाया तो मैं देख रहा हूँ ये मुझे मिल रही है और कहती, ओ मेरे प्यारे भाई ब्रदर ब्रानम, क्या हाल है तुम्हारा? मैं तुम्हें यहाँ देखकर बहुत खुश हूँ। ये तो मेरी बीवी है और मुझे ऐसे भाई क्यों कह रही है? मेरी बात की समझ आई थी। तो आसमान पर कोई मियाँ बीवी नहीं होते, मसीह में सब बराबर है। हालेलुया। आसमान पर देखो नबी की बीवी नबी को भाई कह रही है। फिर फरिश्ता जो उसको लेकर गया वहां पर, फरिश्ते ने कहा, वो औरत क्या तू उसको पहचानता है? नबी ने कहा, नहीं मेरे ज़हन में नहीं आ रहा। फरिश्ते ने कहा, ये वो 90 साल की बूढ़ी माई है। कहता क्या? उसके मुंह पे तो झुर्रियां पड़ी थी, वो तो इस तरह चलती थी, उससे तो चला नहीं जाता था, तो ये बूढ़ी माई इतनी जवान? तो उसने फरिश्ते ने बताया कि ये आसमान की जिंदगी है, आसमान पर कोई बूढ़ा नहीं होता। इसलिए हमारे खुदावंद यीशु मसीह 30 साल की उम्र में, 33 साल की उम्र में काले काले बालों के दरमियान यहाँ पर खिदमत करके गए, और जब आप ऊपर जाएंगे तो उसके व्हाइट बाल नजर आएंगे, क्योंकि वो बुजुर्ग बाप है। हालेलुया, 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 हालेलुया। अब हम देखते हैं यीशु मसीह जी उठे हैं और उसने इस औरत पर अपना आप जाहिर कर दिया है और औरत ने कहा, मुझे मत छूना। अब मसीह यीशु का ये कौन सा बदन था? जलाली बदन था। ये वो जलाली बदन था जिसकी बाबत खुदा मसीह यीशु ने यूहन्ना 17 बाब की दुआ मुबारक में ये बात फरमाई है, ए बाप, मैं जमीन पर तेरा जलाल जाहिर करने के लिए आया था और मैंने जमीन पर तेरे जलाल को जाहिर किया। जलाल क्या था? ये खुदा को कोई देख नहीं सकता, उसके जलाली बदन को, इसलिए खुदा जिस्म में जाहिर हुआ। और आज खुदा अपने बेटों के अंदर आकर अपना जलाल जाहिर करता है। खुदा अपने काम को जारी रखे हुए है। हालेलुया। इसलिए मेरे अजीजों, मैं नहीं जानता आप में से कितने भाई यहाँ पर बैठे हैं, कितनी बेटियां बैठी हैं जो खुदा के लिए बड़े आला काम कर सकते हैं, क्योंकि कोई नहीं जानता था कि मैं खुदा के लिए ये काम कर सकता। कोई भी नहीं जानता था, मेरा खुदा जानता था। लोग मुझसे नफरत करते थे, मैं बहुत बुरा इंसान था, लेकिन खुदा ने मुझे अच्छा बना दिया। आमीन। इसलिए आप सिर्फ खुदावंद यीशु मसीह के लहू पर तवज्जो करें, उसके सलीब के पैगाम पर तवज्जो करें, उसके मरकर जी उठने पर कि वो हमारे लिए मरकर जी उठा है। इसलिए आप इन बातों पर तवज्जो करें। अब देखें, अब मसीह यीशु ने फरमाया कि जाकर मेरे भाइयों से कह, मेरे शागिर्दों से कह कि मैं जी उठा हूं और वहीं पर तुम्हें सबसे पहले मिलूंगा, जिसका मैंने वादा किया था, जैतून के पहाड़ पर तुमसे पहले पहुंच जाऊंगा। कितनी स्पीड है खुदा यीशु मसीह। अब वो जलाल में है, जलाली बदन है। अब वो थकता नहीं है। जब जमीन पर था, जिस समय था, वो थक भी जाता था, कश्ती में सोया भी था, और जब सामरिया में गया था तो वहां पर भी थक कर वो कुएं के साथ टेक लगा रहा था। लेकिन अब जलाल में है, मैं सबसे पहले वहां चला जाऊंगा। और जब भी आप 2 या 3 कम से कम, जब भी ईमान की रूह से, ईमान के साथ खुदावन को पुकारेंगे, खुदावन जल्दी से आपके पास आ जाएंगे। इससे जल्दी से आपके पास, ऐसे ही आपके आंसू बने। खुदावन हमारी दुआ को सुन। खुदावन यहाँ पर तशरीफ फरमा, तेरा वादा जहाँ 2 या 3 मेरे नाम से जमा होंगे, मैं वहां पर मौजूद हूंगा। वो आलम कुल है, इल्मुल गैब है, और हर जगह पर हाजिर और नाजिर है। आमीन। वो हर जगह पर है। आसमान उसका तख्त है, जमीन उसके पांव तले की चौकी है, और वो इतना बड़ा है, आसमानों के अंदर भी पूरा नहीं आ सकता। तो वो हमारी तरह ये 6 फुट तक इंसान बन गया। देखो उस खुदा की कामिल कुदरत, ये उसकी उल्वियत है कि उसने अपने आप को इतना पस्त कर दिया। हम पस्त है ना,
ہماری طرح وہ انسان بن گیا تاکہ موت کے ڈنگ کو ختم کر سکے. ہاللیلویا. اس لیے میرے عزیزو اب وہ مر کر جیتا ہے. اور اب دوسرے والے میں کیا فرماتا ہے؟ لوکا کی انجیل 47ویں آیت. اور یروشلم سے شروع کر کے سب قوموں میں توبہ اور گناہوں کی معافی کی منادی اس کے نام سے کی جائے گی. توبہ اور گناہوں کی معافی کس کے نام سے؟ یسوع کے نام سے. نجات صرف یسوع کے نام سے ہے. باپ بیٹے اور روح القدس کے نام سے کچھ نہیں ہونا. نہ کوئی معجزہ ہونا ہے, نہ کوئی دعا قبول ہونی ہے. آپ آزما کے دیکھ لیں, جب بھی دعا کریں تو خدا یسوع مسیح کا نام نہ لینا. بس ایسے دعا کریں نا, باپ اور بیٹے روح القدس کے نام سے میرا کام ہو جائے, باپ اور بیٹے روح القدس کے نام سے میرا یہ کام ہو جائے. دیکھیں کام ہوتا کہ نہیں ہوتا, کیونکہ باپ اور بیٹا روح القدس کو نام تو لینا ہے. کیونکہ پاک کلام میں لکھا ہے ہر ایک گھٹنا یسوع کے نام پر جھکے گا. ہر ایک گھٹنا یسوع کے نام پر جھکے گا. کہا آسمانیوں کا ہو, کہا زمینیوں کا, کہا ان کا جو زمین کے نیچے. ہاللیلویا. دیکھا یسوع کے آگے ہر ایک گھٹنا جھکتا ہے, تو پھر یسوع کون ہے؟ خدا کے کلام میں لکھا ہے ہر ایک زبان یہ اقرار کرے کہ یسوع مسیح خداوند ہے. وہی بادشاہوں کا بادشاہ, وہی خدا بندوں کا خدا ہے, وہی عالم کل اور قادر مطلق رب ہے, نوروں کا باپ ہے. اور جب وہ سول پر ظاہر ہوتا ہے تو نور کے اندر سے اپنے نام کو پکارتا ہے. وہ خداوند یسوع نور کی صورت میں جب سول پر ظاہر ہوا تو وہ کہتا ہے خداوند کون ہے, خداوند کون؟ تو اس نور کے اندر سے آواز آتی ہے میں یسوع جسے تو ستاتا ہے, جو میں اسی اسرائیل کی سرزمین پر انسان بن کر آیا تھا, اور میری قبر اسرائیل میں آج بھی خالی ہے. کھڑا ہو جا, میں اس لیے تجھ پر ظاہر ہوا ہوں کہ میں تجھے بادشاہوں اور بڑے بڑے خاندانوں لوگوں کے سامنے کھڑا کروں, غیر قوموں میں تجھے لے کر جاؤں. تو میری شہادت دے, میری بشارت دے, میرے نام کا سچا گواہ بن. وہ آپ پر بھی اسی لیے ظاہر ہوتا ہے کہ وہ آپ کو اپنا گواہ کرے. ہاللیلویا. ہاللیلویا. اب دیکھیں, اب تو وہ کہہ رہا کہ غیر قوموں کی طرف جاؤ. اب اس نے یہی کہا نا, اور یروشلم سے شروع کر کے سب قوموں میں توبہ اور گناہوں کی معافی کی منادی کی جائے گی. کیا یہ کون کہہ رہا ہے؟ کون کہہ رہا ہے میرے عزیزو؟ یہ یسوع مسیح کہہ رہے ہیں. اور دیکھو یسوع مسیح کہہ رہے ہیں متی کے 28ویں باب میں 18ویں آیت. یسوع نے پاس آ کر ان سے باتیں کی اور کہا کہ آسمان اور زمین کا کل اختیار مجھے دیا گیا ہے, بس تم جا کر سب قوموں کو شاگرد بناؤ. اب تو کہہ رہا سب قوموں کو شاگرد بناؤ, کوئی قوم ہی نہ چھوڑنا. شاگردوں کو کیا فرماتا ہے؟ سامریا میں بھی نہیں جانا, غیر قوموں کی طرف بھی نہیں جانا, کیونکہ سامریا میں وہ خود گیا تھا, ادھر دو یا 3 دن رہا تھا, وہاں اس نے خود منادی کی, اور غیر قوموں میں بھی وہ منادی تھوڑی تھوڑی کر گیا. ہاللیلویا. جب مسیح یسوع کو وہ عورت چھونے لگی اور مسیح یسوع کا جو بدن تھا تو وہ جلالی تھا, تو خدا نے فرمایا ابھی میں آسمان پر باپ کے پاس نہیں گیا اپنی قربانی لے کر. لیکن جب تھوڑی دیر بعد ایک شاگرد اعتقاد نہیں رکھ رہا, اس کا نام ہے توما, تو 10 نے مان لیا. تو وہ کہتا نہیں جب تک میں اس کی پسلی کے یہ سراغ نہیں دیکھوں, انگلیاں ڈال کے نہیں چیک کروں گا, ہاتھوں کے سراغ نہیں چیک کروں, میں نہیں یقین کروں گا. تو یہ سنتے پھر جب وہ 11 اکٹھے ہوئے تو یہ سنتے پھر ان کے درمیان تالے لگے تھے, کنڈیاں لگی تھی, تو ایک دم سے درمیان میں ظاہر ہو گئے تمہاری سلامتی ہو. آدھے ڈال کے آدھے نے کہا خدا نے تیرا شکر. خدا نے فرمایا کہ اے توما تو کیوں بے اعتقادی کرتا ہے, ادھر آ اور میرے زخموں کو دیکھ, پسلی میں انگلیاں ڈال کے دیکھ, میں وہی تیرا خداوند. وہاں پر مسیح یسوع نے ایک بات فرمائی جو غیر قوموں کے لیے. ہاللیلویا. اے توما تو دیکھ کر ایمان لایا, تو مجھے دیکھ کر ایمان لایا. مبارک ہے وہ جو مجھے بغیر دیکھے مجھ پر ایمان لائیں گے. آپ سب مبارک لوگ ہیں. دیکھیں پہلے وہ کہتا باہر نہ جانا, اب وہ کہتا ہے بہت مبارک ہے وہ, زیادہ مبارک ہے جو مجھے دیکھتا بھی نہیں, میرا نام ہی سنتا ہے, میرا کلام ہی سنتا ہے, اور جان لیتا ہے کہ میں اس کا نجات دہندہ ہوں, میں اس کا کفارہ دینے والا ہوں, میں اس کا شافی ہوں, میرا فضل اس کے لیے کافی ہے.
हालेलुया। हालेलुया। इसलिए मेरे अजीजों, जब वो मर कर जी उठा तो वो यहूदी ना रहा, वो इस्राएली नहीं था, उसके अंदर खुदा का खून था, उसके अंदर खुदा का खून था। इसलिए उसने फरमाया कि सारी कौमों को शागिर्द बनाओ। पहले वो मना करता रहा, फिर वो खुद फरमाता है कि जाओ तुम गैर कौमों को शागिर्द बनाओ, मैं तुम्हारे साथ दुनिया के आखिर तक रहूंगा अगर तुम ये वाली तालीम उनको दोगे। इसलिए हम आपको यही तालीम देते हैं जो खुदावंद की तालीम है, ताकि आप तक खुदावंद का फजल और जलाल जाहिर हो। गलातियों 3 बाब 14वीं आयत। गलातियों 3 बाब और 14वीं आयत। पौलुस रसूल का खत गलातियों के नाम, ताकि मसीह यीशु में इब्राहिम की बरकत गैर कौमों तक भी पहुंचे और हम ईमान के वसीला से उस रूह को हासिल करें जिसका वादा हुआ है। वादा ना पाक रूह देने का, वादा किनके साथ हुआ था? वो तो इसराइलियों के साथ हुआ था। अब देखा हम उस वादे में शरीक हो गए ना। यीशु ने क्या फरमाया था? जब तक मैं तुम्हें आसमान से कुव्वत का लिबास, कुव्वत होता ताकत का लिबास, और ताकत सबसे ज्यादा किसके अंदर है? सुपरमैन, सुपर पावर खुदावंद यीशु मसीह के नाम में, और उसकी कुव्वत है हमारे अंदर, और वो कुव्वत आग है। खुदावंद यीशु आग की सूरत में अपने शिगिर्दों के अंदर आ गए, और जो डरते थे, बुज़दिल थे, वो इस तरह दिलेर हो गए। वो किसी से ना डरे कि बादशाह खड़ा है और ये मार डालेगा। वो इस तरह हाथ खड़ा करते हैं, बादशाह तौबा कर, तूने खुदा के खिलाफ काम किया है। क्योंकि जब कुव्वत मिलती है, ताकत मिलती है, फिर शर्मिंदगी नहीं रहती, फिर डर खौफ नहीं रहता। आप भी अगर खुदावंद यीशु मसीह की कुव्वत और ताकत और हिकमत और दलाई मांगे तो आप भी किसी डरावे से नहीं डरेंगे, किसी बादशाह से नहीं डरेंगे, क्योंकि अब वक्त आने वाला है कि आपका ईमान आजमाया जाए। आप नाम लेते हैं तो आपसे नाम लेने का भी अजर वसूल किया जाएगा। खबरदार कोई यीशु का नाम ले, अभी वक्त आने वाला है। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए लिखा कि इब्राहिम की बरकत, मसीह में इब्राहिम की बरकत गैर कौमों तक भी पहुंचे। ये क्या बात है? इब्राहिम की बरकत गैर कौमों तक कैसे पहुंचे? इब्राहिम को खुदा ने रोटी और मैं दी। आमीन। इब्राहिम को खुदा ने रोटी और मैं दी। इस पर आने वाले दिनों में मैसेज दूंगा, मलके सदक साल। तो गैर कौमों के लिए जब मसीह यीशु मरने से पहले अपने शिगिर्दों के साथ शायरबानी करते हैं तो फरमाया मेरी यादगारी में यही किया करना। अब जो बरकत इसराइल को दी थी वही बरकत हमें मिली है। यीशु मसीह का बदन और लहू हम खाते और पीते हैं, और हमारे अंदर वो नजर आना चाहिए। आमीन। हमारे अंदर किसका खून है? यीशु का। हमारे अंदर खुदावंद यीशु का खून है। हमारे अंदर हमारे बाप का खून नहीं है। आपको पता है, इसलिए जब यीशु को कोई हमारे बाप जमीनी बाप खिलाफ बात करते हैं, हम अपने बाप को उंगली दिखाते हैं, गलत कह रहा बाप, तू ये काम गलत करता है। क्योंकि अब तेरा खून नहीं है मेरे अंदर। मैं बपतिस्मा लेके तो मरकर जी उठा हूं, मेरे अंदर मेरे बाप का खून है, मैं तो वो पीता हूं। तो अब उस खून की बात है, उस खून की गैरत है मेरे अंदर, वो जोश मारता है, कुव्वत का लिबास मिल गया है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। यूहन्ना की इंजील 10वां बाब। अब मसीह यीशु की बरकत गैर कौमों तक, इब्राहिम की बरकत गैर कौमों तक मसीह यीशु में कैसे पहुंची? कि इब्राहिम का बेटा मसीह यीशु है जिस्मानी तौर पर, ठीक है। क्योंकि जब इब्राहिम अपने बेटे को कुर्बान करने लगा था तो खुदावन ने अपने फरिश्ते की मार्फत कहला भेजा, क्या इब्राहिम है, इब्राहिम अपना हाथ रोक ले, मैं जानता हूं कि तू हर चीज से ज्यादा मुझसे प्यार करता है। तूने अपने इकलौते बेटे को भी मुझसे मेरे लिए कुर्बान करने के लिए दरेग ना किया, सो मैं भी तुझे अपनी जात की कसम कहता हूं कि तुझे बरकत पर बरकत दूंगा। जो तेरे खिलाफ मुंह खोलेगा मैं उसको लानत दूंगा, और जो भी इसराइल के खिलाफ और इब्राहिम की नस्ल के खिलाफ वो बातें करते हैं, जो खुदावंद उन पर लानत करता है, क्योंकि वो जिंदा है, वो अपने वादों में सच्चा है। और आज हम देखते हैं वो बरकत हमारे अंदर आई, हम यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा पाते हैं, हमें भी वही रूह कुदस मिलता जो शागिर्दों को मिला था। आगे वही बरकत हमारे अंदर, हमें भी वही बरकत मिलती है, और हमारे ऊपर
रूल कुद्दस की, यीशु के नाम की मोहर हमारे जिस्म पर। उनके जिस्म पर खतना की मोहर थी, हमारे जिस्म पर बपतिस्मा यीशु के नाम की मोहर है। हम रूहानी इसराइली हैं। इसराइल का मतलब है खुदा के शहजादे, खुदा से जोर जमाई करके बरकत पाने वाले। और हमने ईमान रखा, रास्तबाज ठहरे, और उसका जलाल, उसका रहम और तरस हम पर हो गया कि वो किसी की हलाकत नहीं चाहता। आमीन। इसलिए इब्राहिम का वो बेटा और उसके वसीला से गैर कौम तक उस रूह की बरकत गई। यूहन्ना 10वां बाब, हालेलुया, गौर से सुनिएगा। 10वां बाब और उसकी 15वीं और 16वीं आयत। चौदहवीं आयत से, अच्छा चरवाहा मैं हूं, अच्छा चरवाहा मैं हूं, जिस तरह बाप मुझे जानता है और मैं बाप को जानता हूं, इसी तरह मैं अपने भेड़ों को जानता हूं और मेरी भेड़ें मुझे जानती हैं, और मैं भेड़ों के लिए अपनी जान देता हूं। और मेरी और भी भेड़ें हैं जो इस भेड़ खाना की नहीं, मुझे उनको भी लाना जरूर है, और वो मेरी आवाज सुनेगी। फिर एक ही गला और एक ही चरवाहा होगा। हालेलुया, हालेलुया। टॉपिक क्या था? क्या टॉपिक था? इसका अनुमान क्या था जो 2 हवाले पढ़े थे? इसका अनुमान था मत्ती 10वां बाब उसकी 5वीं से 7वीं आयत तक, और लूका की इंजील उसका 24वां बाब 47वीं आयत से लेकर आगे आयत है 46वें से 47वीं आयत तक। इसका अनुमान था इसराइली भेड़ें और दुल्हन। अब दुल्हन को आप भेड़े कहें, पूरी बात समझ आ गई सर? कि अब यीशु मसीह ने क्या फरमाया है, और मेरी और भी भेड़े हैं जो इस गला खाना जो इसराइल की नहीं है, क्योंकि मैं इसराइल को ढूंढने के लिए आया हूं, उसकी भेड़ों को, और अब मेरी दूसरी भेड़ें भी हैं जो इसराइल के अंदर नहीं, तो मैं उनको भी ढूंढना है, मुझे उनको भी लाना जरूर है, और वो मेरी आवाज सुनेगी। और यीशु की आवाज कहाँ है? ये यीशु मसीह की आवाज है जो आप तक पहुंची है। यीशु मसीह ने वहां से आवाज आपको दी है कि आ जाओ, ये कलाम सुन के, ये मेरा कलाम है। इसलिए यीशु मसीह ने फरमाया ज्यादा मुबारक है वो जो मुझे बगैर देखे कबूल करता है, मुझ पर ईमान रखता है। आप उसकी दूर की भेड़े हैं जिसको उसने अपने गला खाना में लाना है। इसराइली भेड़े और आप भी भेड़े, फिर एक ही गला होगा और एक ही चरवाहा होगा, और वो आपका और मेरा खुदाम यीशु मसीह है। वो फरमाता सबसे अच्छा चरवाहा मैं हूं जो भेड़ों के लिए अपनी जान देता है। हालेलुया। कौन कौन यीशु की भेड़ बनना चाहता है? हालेलुया। यीशु की भेड़ कोई नहीं बनना चाहता, सारे बनना चाहते। आमीन, हालेलुया। खुदावंद आपको बरकत दे। इस जिंदा पाक कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सबों के लिए बाइस से बरकत हो। आमीन। अपने कदमों पर सब खड़े हो जाएं। हम आपके लिए दुआएं खैर करेंगे, बरकतें और रहमते खुदा से आपके लिए मांगेंगे। आप जो कुछ मांगना चाहते हैं, अब वक्त है आप सब दुआ करना शुरू करें, खुदावंद की बरकत मांगना शुरू करें। वो खुदावंद देख रहा है कि जो आज ईमान से और ताबेदारी से, वफादारी से आज खुदावंद से आप मांगेंगे तो खुदावंद आपको बरकत देगा, वो रहम करेगा, वो फजल करेगा। सब आंखें बंद कर लें, सब दुआ करना शुरू करें। हालेलुया, हालेलुया। सब दुआ करें, सब दुआ करें। इस घराने के लिए दुआ करें, भाई लियाकत के लिए दुआ करें कि वो आपके सुंदर चरणों में आ जाए। हालेलुया। सब दुआ करें भाई लियाकत की फैमिली के लिए, उसके बेटों के लिए कि खुदा उसके बेटों को छू ले। दुआ करें, हालेलुया। हर एक रूह दुआ करे, हर एक भेड़ खुदावंद से चारा मांगे, हर एक भेड़ खुदावंद की बरकत मांगे, खुदावंद की जिंदगी मांगे, क्योंकि वही जिंदगी देने वाला रब है और वही बापों का बाप है, वही अजीम बाप है, वो कादर मुतल्लिब खुदा है। वो अभी जो हमारे लिए इंसान बन गया और वो हमें
निजात देने के लिए नीचे जमीन पर उतराया और वो जमीन पर उतरा और वो जमीन के नीचे तक चला गया उन भेड़ों को भी बचाने के लिए, उन प्यासी रूहों को जो उस वक्त से कैद में थी जब तूफान नूह आया और उनको गर्क कर दिया। ऐ मेरे अजीजों, बेटों और बेटियों, खुदावंद आपको माफ करेगा। खुदावंद आपसे प्यार करता है, वो चाहता है माफी मांगो, वो रहम करने वाला है, वो कहे गम में जीवा और शफकत और रास्ते में गली है, दुआ में कुल और कसम करने वाली याद है। हालेलुया। जिंदा खुदावंद खुदा, मेरे बाल खुदावंद प्यारे खुदा, तू जो इस्राएल की खोई हुई भेड़ों को तलाश करने आया था पर और तूने फरमाया है मेरी और भी भेड़ें हैं जो इस गला का रशी नहीं है, मुझे उनको भी ढूंढना जरूर है। ऐ खुदा जिंदा खुदा, लश्करों के खुदा, इब्राहिम के खुदा, कादर मुतरी खुदा, पैरों के खालिक और मालिक, निजात देने वाले के बाप, मेरा शुक्र करते हैं प्यारे खुदा, मेरा रहम चाहते हैं मेहरबान बाप। हालेलुया। ऐ खुदा कादिर कदूस, अब्दियत के बाप और सलामती के शहजादे खुदावंद यीशु मसीह, हालेलुया। खुदावंद तेरा रहम, तेरा फजल, तेरा करम और जो रोती आंखें और खुदावंद जो दिल से रो रहे प्यारे खुदावंद खुदा जिंदा खुदा, कुल बशर की रूहों के खुदा, कादर मुतली खुदा, तू जो यहाँ पर मौजूद है, मैं खुदावंद तेरे बदौलत ये सुनाम से चाहता हूँ ये सब बरकत पाए, ये घराना बरकत पाए और जिस खास मकसद के लिए भाई लियाकत की बीवी ने खुदा पाक अपने घर में तुझे बुलाया है। ऐ मेरे प्यारे खुदावंद, मेरे मुनज्जी, मेरे अजीम रब्बुल ख्वाश, तू जो भेड़ों का अच्छा चरवाहा है, इस भेड़ की दुआ कर सुन, जिसने अपने घर बुलाया मेरे खुदा, इसके बंदे को बदल, आमीन, इसकी औलाद को बदल, आमीन, तेरे वफादार बेटे बेटियां बन जाए, आमीन, भाई की भाई लियाकत की जिसको बरकत दे, आमीन, भाई साहब को मित्रों को पूरा कर तेरे खुदावंद, आमीन, भाई खुदावंद से सब कुछ पूरा हो, आमीन। खुदावंद आज तेरे दिए में से खुदावंद उन्होंने नाश्ता करवाया, तेरे दिए में से इतना इंतजाम किया, खुदावंद इनकी दिल की ख्वाहिशात को पूरा कर, ये हमारे लिए नहीं खुदावंद, ये सब कुछ तेरे लिए था और खुदावंद इनकी जिंदगी से तेरा जलाल जाहिर हो मेरे खुदा, इनके कारोबार में बरकत दे और खुदावंद जितनी भी जमात यहाँ पर खड़ी है, जितने भी खानदान यहाँ पर खड़े हैं, इनके कारोबार में बरकत आए, आमीन, उस कलाम की बरकत दे, अपने दूर चुकने की दुआ करने की वफादार रहने की बरकत दे, आमीन, से तेरा जलाल जाहिर हो, आमीन, बताए तेरे रूह की नींद इनके अंदर हो, तेरे रूह के फल हो, तेरे वफादार हो और अभी जमाना में खुदावंद ये तेरे सच्चे दुआ बने, आमीन, तक बर्दाश्त करने के लायक फजल बख्श ताकि हमेशा की जिंदगी पाए। मेरे जिंदाबाद प्यारे यीशु, तेरे ही पवित्र यीशु नाम से ये मिलते प्यादे दरबार दिल रखता हूँ और भी जितनी मिलते प्यादे दरबार दिल तेरे बुजुर्ग यीशु और कबूल कर, तेरे ही बुजुर्ग यीशु नाम से दुआ मांगते हैं, आमीन, हालेलुया। खुदावंद यीशु मसीह का नूर आप पर चमके, खुदावंद यीशु मसीह का चेहरा आप पर जलवागर हो, खुदावंद यीशु के नाम में आपकी सलामती अब्दुलबाद हो और आप उसके वफादार हो और बेटे बेटियां बनकर उसके नाम को जलाल दे, उसकी मर्जी जिस तरह आसमान पर जमीन पर पूरी होती है आपकी जिंदगी में पूरी हो, सब कहे आमीन। खुदावंद आप सबको बड़ी बरकत दे, खुदावंद यीशु तेरा शुक्र करते, तेरे फजल रहम करो, तेरा शुक्र, हालेलुया।